کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ ننکانہ صاحب میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 4 بین الاضلاعی ڈکیٹ گینگ کے 12 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکوؤں کے قبضے سے 45 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا لوٹا ہوا مال بھی برآمد کر لیا گیا۔ بہاول نگر میں بھی جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا۔ 32 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئیں۔ فیصل آباد میں جرائم پیشہ افراد بے لگام ہو گئے۔ ملت ٹاؤن میں چور جیولرز کی 8 دکانوں کا صفایا کر گئے۔ لاکھوں روپے مالیت کا سونا، نقدی اور دیگر سامان چوری، ملزمان کا سراغ نہ لگ سکا۔ سیالکوٹ میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری، شہری سلنڈر اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ صارفین کہتے ہیں کہ گیس نہیں آتی مگر بل ہر ماہ وصول کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی خوشاب، خانقاہ ڈوگرہ اور شیخوپورہ سمیت پنجاب بھر میں جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مختلف علاقوں میں محافل اور ریلیوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ صادق آباد میں کل پاکستان محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ نامور شعراء نے اپنا کلام پیش کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ میرپور خاص میں عدالت کے حکم پر انتظامیہ کی عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی، مزید 4 کلینکس کو سیل کر دیا گیا۔ عطائی ڈاکٹر موقع سے فرار ہو گئے۔ سندھ حکومت کے تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے۔ لاڑکانہ کے نواحی گاؤں میں اسکول کی عمارت نہ ہونے کے باعث بچے مسجد میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ خیرپور میں پولیس اور عوام کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ امن کے قیام کے لیے پولیس اور عوام کا تعاون ضروری ہے۔ پشاور میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن میں 41 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ لوئر دیر کے سرکاری اسکول میں اسکول انچارج کو طلباء سے مزدوری کرانا مہنگا پڑ گیا۔ میڈیا کی نشاندہی پر ضلعی آفیسر محکمہ تعلیم نے فوری نوٹس دیتے ہوئے معطل کر کے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ چمن میں شہریوں کا لوکل کمیٹی فعال نہ کرنے پر احتجاج، ریلی نکالی۔ مظاہرین نے غفلت اور نااہلی پر اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اور چمن میں ایڈز سے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر، سیاسی رہنماؤں، بلدیاتی نمائندوں، علماء کرام اور طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ ننکانہ صاحب میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 4 بین الاضلاعی ڈکیٹ گینگ کے 12 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکوؤں کے قبضے سے لوٹا ہوا مال بھی برآمد کر لیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں پولیس نے بڑا گھر کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 50 سے زائد مقامات پر مطلوب 4 بین الاضلاعی ڈکیٹ گینگ کے 12 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکوؤں کے قبضے سے 45 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ بھی برآمد کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او کی جانب سے پولیس اور افسران اہلکاروں کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام کا اعلان کیا گیا۔ اس حوالے سے ایس ڈی پی او محمد اکرام خان نے بتایا کہ چند ماہ سے مختلف ڈکیٹ گینگز نے
सर्कल बड़ा घर में शहरियों का जीना मुहाल कर रखा था, जिस पर डीपीओ ननकाना ने मेरी सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने दिन रात मेहनत करके खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में मेहदी उर्फ कालू डकैत गैंग के 5 अरकान, उस्मान और इसके अलावा डकैत गैंग और फारूक उर्फ फारूकी डकैत गैंग के 7 अरकान शामिल हैं। उधर बहावलनगर में भी जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और चोरी की दर्जनों मुकदमात में मुलव्विस 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। बहावलनगर में गुज़िश्ता कई रोज से मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। पुलिस ने थाना सदर के इलाके से 4 रुकनी मोटरसाइकिल गैंग को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 32 मोटरसाइकिलें और 2 पिस्टल बरामद कर लिए। थाना सदर एसएचओ के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में अलीम का ताल्लुक लाहौर, एजाज का ताल्लुक बख्श खान, अली रजा का ताल्लुक उकाड़ा, जबकि मुलजिम मोहम्मद जाहिद का ताल्लुक विहाड़ी से है। जड़ावाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300 लीटर शराब बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जड़ावाला के इलाके थाना सदर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश रमजान को गिरफ्तार कर लिया और 300 किलो शराब भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अरसा दराज से इस मकरूह धंधे में मुलव्विस था और इलाका भर में शराब सप्लाई करता था। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की मदद से दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखुपुरा में डेंगी टीम की निशानदेही पर मुर्दा जानवरों का गोश्त पकड़ा गया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में न आई। शेखुपुरा के इलाके भक्की में असिस्टेंट कमिश्नर ने डेंगी टीम की निशानदेही पर एक घर पर छापा मारा और घर से भारी मिकदार में मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद कर लिया। ताहम घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कमिश्नर के मुताबिक मुर्दा जानवरों का गोश्त तैयार करके मार्केट में सप्लाई किया जाता था। पुलिस राय के मुताबिक घर के मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब में चोर पुलिस का खेल जारी है। जराइम पेशा अफराद सरगर्म हो गए। फैसलाबाद में चोर ज्वेलर मार्केट का सफाया करके छू मंतर हो गए। पुलिस ने रवायती कार्रवाई का आगाज कर दिया, लेकिन ताहाल मुलजिमान का पता नहीं चल सका। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नगरी में जराइम पेशा अफराद का राज, चोरी, डकैती और राहज़नी की वारदातें आम होने लगी। लाहौर में डकैती के वारदातों के बाद अब फैसलाबाद के मिल्लत टाउन में वाक़े ज्वेलर्स मार्केट में भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर शहर की मशरूफ ज्वेलर मार्केट में 8 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सोना, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। सराफा मार्केट की मुतासरा दुकानदारों के मुताबिक मार्केट के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे CCTV कैमरे भी नाकारा थे। सिक्योरिटी के भी खातिरख्वाह इंतजाम नहीं थे। मुतादिद शिकायत के बाद भी नोटिस नहीं लिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने रिवायती कार्रवाई का आगाज करते हुए नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुल्तान में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों के खिलाफ ताजरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और बोहर चौक पर धरना भी दिया। मुल्तान के इलाके बोहर गेट के ताजरों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी, जिसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। एहतजाजी ताजरों का यह कहना था कि शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर ताजर तबका सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। उन्होंने कहा कि पुलिस ताजरों पर झूठे मुकदमात दर्ज करके उन्हें परेशान कर रही है। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर पुलिस ने झूठे मुकदमात वापस ना लिए तो मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। गुजरात पुलिस में मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। अकाउंट्स ऑफिस के इंचार्ज ने साथियों से मिलकर 4 माह के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा रकम खजाने से निकलवा ली। मुलजिमान बैरून मुल्क फरार हो गए। गुजरात पुलिस के अकाउंट ऑफिसर का महकमे के खजाने पर डाका, करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द करने के बाद साथी एहलकार समेत बैरून मुल्क फरार हो गया। गुजरात पुलिस के अकाउंट ऑफिस के इंचार्ज रिजवान अशरफ और मुअत्तल एहलकार आगा रमीज ने सरकारी चेक बुक्स पर डीपीओ के जाली दस्तखत करके 4 माह के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा रकम खजाने से निकलवाई। डीपीओ गुजरात ने तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अकाउंट ब्रांच को सील कर दिया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अकाउंट ऑफिसर
रिजवान अशरफ ने 4 माह कबल ईद उल अजहा की तैयारियों के लिए खजाने से 10 लाख, नए डीपीओ सुहेल जफर चट्ठा की आमद पर इस्तकबाल के लिए 10 लाख और सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने, अफसरान की रिहायशगाहों की तज़ीनो आराइश की मद में लाखों रुपए के जाली कागजात तैयार करवा के रकूम निकलवाई। डीपीओ ने रिजवान अशरफ के तमाम असासों की तफसीलात इकट्ठा करते हुए उसकी चंद माह कबल ही ली गई करोड़ों रुपए मालियत की कोठी को सील कर दिया है। ताहम मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही पाकिस्तान को सालाना 1.5 खरब रुपए से जायद का ज़र मुबादला बरामदात कीमत में कमाकर देने वाला जिला सियालकोट, जहां पर सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। सरापा एहतजाज सारिफीन का कहना है कि गैस तो आती नहीं लेकिन बिल माहाना भेज दिया जाता है। इसी हवाले से देखते हैं मियां नईम इकबाल की ये रिपोर्ट। जिला सियालकोट के शहरी और दही इलाकों में सर्दी का मौसम शुरू होते ही सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। सुई गैस ना होने की वजह से लोगों को खाने पकाने में सख्त परेशानी का सामना है, जिसकी वजह से लोग सिलेंडर, लकड़ियां और गोबर की मदद से खाना पकाते हैं। शहरियों ने दर्जनों शिकायत महकमा सुई गैस हकाम को की, लेकिन कोई कार्रवाई न हुई है। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही ना गैस का मसला बन जाता है। 2-3 माह से यही मसला है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई गैस नहीं है, कोई चूल्हा जला रहा है, गैस सिलेंडर जला रहा है। गैस तो जो है ये नाम की चीज़ है, बस बिल इतने आते हैं, गरीब लोग हैं उनके ऊपर इतना बोझ पड़ जाता है। और जो कुछ लोग तो बेचारों के पास दूसरी गैस लाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, वो बेचारे लकड़ियाँ जलाते हैं, मुश्किल में पड़े हैं। सुई गैस तो सारा दिन घरों में नहीं आती, लेकिन ज्यादातर मुकामात पर सुई गैस की लोड शेडिंग भी जारी है। शहरियों को बिल हर माह मिलता है लेकिन गैस नहीं मिलती। हमारे इलाके में गैस कोई भी नहीं आती। सुबह बच्चे जाते ने रो रहा के स्कूल में चले जाते हैं। हमारे गांव में गैस नहीं आती। हम तो ज़्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और हर महीने बिल आ जाता है। सुई गैस की लोड शेडिंग और बंदिश की वजह से घरेलू व सनती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और लोग परेशानी का शिकार हैं, जिन्हें सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। सियालकोट में सुई गैस की इंतहाई किल्लत है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन इरफान जान के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। बहावलपुर में पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली एसई कॉलेज से शुरू होकर प्रेस क्लब पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिन पर मुतालिबात की मंजूरी के लिए नारे दर्ज किए गए थे। शुरका ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुजाहिरीन ने कॉलेज टीचर्स के लिए टाइम स्केल, 1 स्टेप अपग्रेडेशन और स्टाफ की कमी समेत दीगर मुतालिबात की मंजूरी का मुतालिबा किया। एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि अगर हुकूमत ने उनके जायज़ मुतालिबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। विक्टोरिया अस्पताल की मुख्तलिफ वार्ड्स खाली करवा ली गईं। मरीज सर्दी में खड़े एहतजाज करते रहे। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आमद की इत्तला मिलते ही अमले की दौड़ें लग गईं। अस्पताल की सफाई के दौरान मरीजों में भी वार्ड्स खाली करा ली गईं। चिल्ड्रन वार्ड्स में बच्चों के लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि सुबह के वक्त जब सूरज भी नहीं निकला तब से वो बाहर खड़े हैं। हम अपने बच्चों के साथ लिए सर्दी में ठिठुरते रहे, मगर इंतजामिया को किसी की कोई परवाह नहीं। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया से जब इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। महकमा अशर ज़कात की तरफ से टोबा टेक्सिंग के वोकेशनल ट्रेनिंग इदारों और सरकारी अस्पतालों की सोशल हेल्थ वेलफेयर कमेटियों में चेक तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का अहवाल जानते हैं सुल्तान की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग महकमा उशर ज़कात की तरफ से जिला भर के वोकेशनल ट्रेनिंग अदारों और सरकारी अस्पतालों में सोशल हेल्थ वेलफेयर कमेटियों में चेक तकसीम करने की तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुनक्कद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी जिलाई चेयरमैन उशर ज़कात मियां अनवारुल हक, सदर VTI मियां अब्दुल सत्तार, सोशल वेलफेयर ऑफिसर राय अब्दुल शकूर समेत शहरियों ने शिरकत की। तकरीब में वोकेशनल इंस्टीट्यूट टोबा को 47,34,000 रुपए, VTI कमालिया को 25,92,000 रुपए और VTI गोजरा को 24,30,000 का चेक दिया गया। THQ अस्पताल टोबा की हेल्थ वेलफेयर कमेटी को 7,30,000 रुपए, THQ कमालिया की कमेटी को 2,19,000 रुपए और आईकम जनरल अस्पताल गोजरा की कमेटी को 3,83,000 रुपए का चेक दिया गया। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद गरीब लोगों की खिदमत है जो अस्पताल में अफोर्ड नहीं कर सकते। आज के जो चेक्स थे ये स्पेशली थे मुस्तहिक मरीजों के लिए,
जो गरीब मरीज हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुकर्रीन ने कहा कि इन फंड से अस्पतालों में मुस्तक मरीजों को मुकम्मल मुफ्त इलाज और अद्वियात मुहैया होंगी। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टॉपर। रबीउल अव्वल की आमद पर खानीवाल में जुलूस निकाला गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खानीवाल में रबीउल अव्वल की आमद का जुलूस निकाला गया। जुलूस चौक कपीवाला से बरामद होकर चौक संगावाला पहुंचा, जहां पर दुकानदारों ने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर गुलाब के फूल निछावर किए। रैली में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस चौक मिलाद मुस्तफ़ा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मुख्तलिफ शोरा और सना खान हज़रत मोहम्मद की शान इक़दस में नातिया गुलहाए अकीदत और दुरूद सलाम पेश करते रहे। गुजरांवाला में ज़राई तरक्याती बैंक ने छोटे काश्तकारों को बिला सूद कर्जों की फ्राहमी का आगाज कर दिया। गुजरांवाला ज़राई तरक्याती बैंक में छोटे काश्तकारों में बिला सूद कर्जों की फ्राहमी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मियां आमिर हुसैन ने शिरकत की और पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम के तहत 25 किसानों में चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कहना था कि किसानों को उनकी दहलीज तक ज़राई कर्जाजात और जदीद टेक्नोलॉजी फ्राहम करने के लिए ज़राई तरक्याती बैंक हमेशा की तरह पेश रहेगा। सेहराए चोलिस्तान के नवाही गांव 8 DNB में मॉडल प्लस बुनियादी मरकज़ सेहत का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां 24 घंटे अमला खिदमात सरअंजाम देगा। सहराए चोलिस्तान के नवाही इलाके में मॉडल प्लस बुनियादी मरकज़ सेहत का इफ्तिताह ईडीओ सेहत डॉक्टर शाहिद खलीक ने किया। इस मौका पर उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानब से सूबे के दूर दराज इलाकों में सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही है। मॉडल प्लस बुनियादी मरकज़ सेहत के क़याम से जच्चा व बच्चा की जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। 7 दिन और 24 घंटे सर्विस दी जाएगी और यहाँ तमाम डिलीवरीज का सामान मेडिसन फ्री दिया मुहैया किया जाएगा और एक LHC यहाँ पाबंद है जो 24 घंटे उन डिलीवर्स को देखेगी। ईडीओ का ये भी कहना था कि जच्चा व बच्चा की बेहतर सेहत और जिंदगी के लिए तरबियत याफ्ता अमला 24 घंटे मॉडल सेंटर में मौजूद होगा। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा ने कहा कि अगर अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया तो फिर उनका सियासी मुस्तकबिल यकीनी तौर पर तारीख हो जाएगा। अफगानिस्तान भारत के एजेंडे पर काम करता रहेगा। डेरा गाजी खान में कबायलियों से खिताब करते हुए साबिक गवर्नर पंजाब का कहना था कि दहशतगर्दी और मुल्क को दरपेश खतरात के हवाले से पाक फौज ने बहुत अच्छा काम किया। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होते और अफगानिस्तान भारत के एजेंडे पर काम करता रहेगा, हमारे लिए मसाइल पैदा होते रहेंगे। उनका कहना था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ बहुत अच्छी मिसाइल काम करके गए हैं। नए आर्मी चीफ के लिए जनरल राहिल शरीफ की गाइडलाइन से हटना आसान ना होगा। उम्मीद है वो अच्छा काम करेंगे। मिंचनाबाद में दहशतगर्दी के खिलाफ फौज का किरदार और आम शहरियों के फ़राइज़ के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम मिंचनाबाद के TMA हॉल में दहशतगर्दी के खिलाफ फौज के किरदार और आम शहरियों के फ़राइज़ के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में तुलबा, असातिज़ा, काउंसलर्स समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मेजर फ़र्रुख सलीम ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे में मीडिया, उलमा और असातिज़ा कौम की आगाही के लिए बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़रब-ए-अज़्ब की कामयाबी से मुल्क की तामीर और तरक्की में पाकिस्तान के इस्तेहकाम में काफ़ी मदद मिली है। उनका कहना था कि दुश्मनों की हर हरकत को बाखूबी जानते हैं और वो किसी भी भूल में ना रहें। दुश्मन दहशतगर्दी का सहारा लेकर पाकिस्तान की तरक्की को रोकने में कभी कामयाब नहीं होंगे। दीगर मुकर्रीन का कहना था कि फ़िरका वारियत से पाक मुआशरे की तश्कील के लिए दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। कसूर में जारी लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। आखिरी रोज स्कूल के तुलबा को अदालत का दौरा करवाया गया। कसूर में लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। आज तकरीबात के आखिरी रोज मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा को अदालत का दौरा करवाया गया। इस मौके पर तुलबा को अदालती कार्रवाई का मुशाहिदा भी करवाया गया।
मीरपुर खास में अदालत के हुक्म पर इंतजामिया ने अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मजीद 4 क्लिनिक्स को सील कर दिया। अताई डॉक्टर मौके से फरार हो गए। अदालत के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमा सेहत के फोकल पर्सन के हमरा मीरपुर खास की तहसील और इसके अलावा गोहर शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान छापा मार कर मजीद 4 क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि अताई डॉक्टर्स ने इलाके में गैर कानूनी अस्पताल कायम कर रखे हैं जो शब रोज कीमती इंसानी जानों से खेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे कबल भी 30 से ज्यादा क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज और मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि मज़कूरा कार्रवाई अदालती हुक्म पर की गई है। सिंध हुकूमत के तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे लारकाना से 3 किलोमीटर दूर गांव में स्कूल की इमारत न होने के बायस बच्चे मस्जिद में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अशफाक अली की इस रिपोर्ट में। लाड़काना से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर गांव बकापुर में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग न होने की वजह से बच्चे मस्जिद और पेश इमाम के हुजरे में कई सालों से पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल में बाकायदा तौर पर असातिज़ा आ तो रहे हैं, लेकिन स्कूल की इमारत न होने की वजह से बच्चों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। गाँव वालों ने आला हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन किसी ने भी इस जानब तवज्जो नहीं दी। बच्चे जो है वो परेशान हुए, वो तालीम नहीं आ पा रहे हैं। एक ही कमरा है, वो मस्जिद है, मस्जिद के आगोर से पढ़ते हैं, उसको जो है वो पेशे मामले के बाहर निकालते हैं। दूसरी जानब सर्दी से बचने के लिए एक गाँव वालों ने अपने घर का एक कमरा बच्चों को पढ़ने के लिए दिया है। मकान के कमरे हैं वो खाली करा दिया है, उसमें पढ़ते हैं। बहुत सर्दी में, गर्मी में बच्चे परेशान है। लाड़काना में जहां गर्मी शदीद पड़ती है वहां सर्दी भी अच्छी खासी पड़ती है। लाड़काना में सर्दी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कैमरामैन शहरयार लूडो के साथ अशफाक अली सांदाणो, वक्त न्यूज, लाड़काना। जामशोरों में तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। महकमा सेहत में नेशनल प्रोग्राम के तहत काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स ने ठंडी सड़क पर एहतजाज किया और सड़क ब्लॉक कर दी। महकमा सेहत में नेशनल प्रोग्राम के तहत काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाज किया और सड़क ब्लॉक कर दी। इस मौका पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि तनख्वाहें न मिलने पर शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाज करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि गुज़िश्ता 4 माह से वो तनख्वाहों से महरूम है। नेशनल प्रोग्राम के तहत वफाक हर माह सूबे को फंड्स फराहम करता है, मगर महकमा सेहत के अफसरान की करप्शन के बायस तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जा रही। उनका कहना था कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस लेडी हेल्थ वर्कर्स माली मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। खानपुर महर और गिरदनवाह में मुनासिब वक्त पर वैक्सीन न लगवाने की वजह से मवेशी गलघोटू की खतरनाक और जानलेवा बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। खानपुर महर की तहसील खानगढ़ा समेत जिला घोटकी के सहराई इलाकों में मवेशियों में गलघोटू की खतरनाक बीमारी तेजी से फैल रही है। महकमा लाइव स्टॉक की लापरवाही के बायस दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। मुतासिरा किसानों का कहना था कि महकमा लाइव स्टॉक ने जानवरों की वैक्सीन के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाए और न ही यहाँ सरकारी डॉक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से उनके जानवर मर रहे हैं। इलाके बहुत गाँव मर गए हैं, में ही मर गए हैं, तो नुकसान हो रहा है। न कोई डॉक्टर है। गलघोट की बीमारी है ये जो है, इसके लिए ना तो सरकारी वैक्सीन है, ना तो कोई डॉक्टर आते हैं। जो होता है वो हम प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं। अवाम का कहना था कि मवेशियों में बीमारी फैलने से उनकी कीमतों में रिकॉर्ड कमी आ गई है। मवेशी मंडियां वीरान हो गई हैं, जबकि कसाबों की चांदी हो गई है, जो बीमार जानवर आधी कीमत में खरीद कर उनका गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। परेशान हाल अवाम ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने और जानवरों की वैक्सीनेशन कराने का मुतालिबा किया है। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।